પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશના માઇનોરિટીઝ માટે આશાનું એક નવું કિરણ બન્યો છે. સૌને અપનાવીને ભાઈચારા, સૌહાર્દ અને કરુણાની આપણી સદીઓથી ચાલતી આવતી સંસ્કૃતિનું દર્શન અને પરિચય આ કાનૂનથી વિશ્વને થયો છે. પાછલા 10 વર્ષમાં ભારત વિશ્વસનીય, ભરોસાપાત્ર અને મજબૂત દેશ તરીકે વિશ્વમાં પ્રચલિત થયો છે. યુક્રેન રશિયા યુદ્ધમાં ફસાયેલા લોકોની સલામતી વાપસી માટે ઓપરેશન ગંગા, પેલેસ્ટાઇન ઇઝરાયલ વચ્ચે યુદ્ધમાં ફસાયેલા લોકોને પરત લાવવાનું ઓપરેશન અજય, આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં આપણે વર્ષ 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતના નિર્માણની દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છીએ. આપણા પડોશીઓમાં શાંતિ રહે, આપણી સરહદો સલામત રહે અને દેશમાં શાંતિ, સૌહાર્દનું, આંતરિક સુરક્ષા, સલામતીનું વાતાવરણ રહે તે વિકાસ માટેની પ્રાથમિકતા છે. આદરણીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહના નેતૃત્વમાં દેશમાં આંતરિક શાંતિ અને સુરક્ષા ખૂબ જ મજબૂત થયા છે. સદીઓ જૂના કાયદાઓના સ્થાને સમયાનુરૂપ અપરાધિકા અને ન્યાયિક કાનૂન બનાવીને શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબે વિકસિત, આત્મનિર્ભર અને ઉન્નત શ્રેષ્ઠ ભારતની કલ્પનાના સાકાર કરવામાં સિંહ ફાળો આપ્યો છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રીએ વર્ષ 2047 સુધીના સમયને અમૃતકાળ ગણ્યો છે. આ અમૃતકાળ આપણા માટે કર્તવ્ય કાળ છે. આપણે સૌ કર્તવ્ય કાળમાં વિકસિત ભારતના નિર્માણ માટે કર્તવ્યરત રહીએ એવી અપેક્ષા સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપના પ્રેરણાદાયી શબ્દો માટે. ભારત એક એવો દેશ છે જ્યાં અધિકારોનું રક્ષણ છે, સુરક્ષા અને સમાનતાપૂર્ણ વાતાવરણ છે, સંવેદના અને માનવતા અહીં શ્વસે છે અને માં ભારતીના સૌ ધર્મના સંતાનો અહીં સાથે વસે છે. આજે ગુજરાત જ નહીં પરંતુ સમગ્ર રાષ્ટ્ર માટે ઐતિહાસિક દિવસ છે. જે વ્યક્તિઓએ પડોશી દેશોમાં પારાવાર પીડા ભોગવી હતી તેવા દમનને કારણે ભારતમાં આશ્રય મેળવનાર 188 જેટલા હિન્દુ શરણાર્થીઓને આજે ભારતનું નાગરિકતા પ્રમાણપત્ર મળવા જઈ રહ્યું છે. સાદર વિનંતી કરીએ છીએ માનનીય કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીશ્રીને કે આપના શુભ હસ્તે આ પ્રમાણપત્ર એનાયત કરજો. મંચ પરથી પ્રતિકાત્મક 5 લાભાર્થીઓને આ પ્રમાણપત્ર એનાયત થશે. મંચ પર આમંત્રિત કરીએ છીએ વેરશીભાઈ જેમલભાઈ, સુરેન્દ્રનગરના શરણાર્થી છે અને આજે તેમને CAA અંતર્ગત ભારતનું નાગરિકતા પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે. ત્યાર પછી હીરીબાઈ, ત્યાર પછી જીવણભાઈ રબારી, ઈશા અને મિરનભાઈ ફકીરો પણ ઝડપથી પધારશો. હીરીબાઈ પછી જીવણભાઈ રબારી. આ સૌ લાભાર્થીઓના હૃદયમાં આજે સંતોષ અને ગૌરવની લાગણી થઈ રહી છે. મંચ પર આમંત્રિત કરીએ છીએ રાજકોટથી આવેલા એશાબેનને. મીરાનબાઈ ફકીરો પાટણના રહેવાસી અને હવે તેમને ભારતનું નાગરિકતા પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. વાત હોય દેશની આંતરિક સુરક્ષાની કે પછી દેશના લોકોની વચ્ચે સામાજિક સૌહાર્દની, એક તરફ પરમ સંવેદના અને બીજી તરફ અપાર શૌર્યને સતત સાથે રાખી માં ભારતીની સેવામાં સદૈવ કર્તવ્યરત અને દેશની સુરક્ષા માટે નો કોમ્પ્રોમાઇઝ એટીટ્યુડ ધરાવનાર માનનીય કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહને આવો ખૂબ તાળીઓના આદર સાથે આવકારીએ. આજના આ ઐતિહાસિક દિવસે
આપના પ્રેરણાદાયી માર્ગદર્શન માટે. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. वहां से बन लगता है. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की वंदे. आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात राज्य के आरोग्य मंत्री श्री ऋषिकेश भाई, सहकारिता मंत्री जगदीश विश्वकर्मा जी, मेरे सांसद साथी श्रीमान नरहरि भाई, हसमुख भाई, दिनेश भाई और मंच पर उपस्थित पुलिस महानिदेशक गुजरात श्री विकास सहाय, गृह विभाग की सचिव निपुणा तोरवणे जी, जिनके तत्वाधान में ये नागरिकता देने का कार्यक्रम चल रहा है, वो आद्रा अग्रवाल जी, और आज मंच पर बैठे हुए सारे विधायक भाई, विधायक बहनें और आज गुजरात भर से कई जिलों से आए हुए शरणार्थी अब तक कहलाते थे, आज से भारत माता के परिवार में आप लोग शामिल हो जाएंगे. ऐसे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है. मित्रों, आज मेरे जैसे समाज जीवन के कार्यकर्ता के लिए एक बहुत भावुक क्षण है, क्योंकि ये सीए सिर्फ देश के लाखों लोगों को, देश में बस रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं है. सीए देश में बस रहे लाखों शरणार्थियों को न्याय देने का और अधिकार देने का कार्यक्रम. और पास्ट में भारत सरकार, जो कांग्रेस पार्टी और इनके साथियों ने चलाई, इनकी तुष्टीकरण की नीति के कारण सन 47 से लेकर 2014 तक जो लोग देश की शरण में आए, उनको अधिकार नहीं मिला, उनको न्याय नहीं मिला. उनकी प्रताड़ना पड़ोसी देशों में तो हुई, क्योंकि वो हिंदू थे, जैन थे, बौद्ध थे, सिख थे, मगर उनकी प्रताड़ना अपने देश में भी हुई, यहां पर भी हुई. लाखों करोड़ों लोग, 3-3 पीढ़ियां हो गई, न्याय के लिए तरसते रहे, मगर ये इंडी अलायंस की तुष्टीकरण की नीति ने इस शरणार्थियों को न्याय नहीं दिया. और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने इनको न्याय देने का. मैं आज सीए के बारे में थोड़ा डिटेल बताना चाहता हूं कि सीए क्यों लाना पड़ा. किसी भी देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, मगर भारत का विभाजन आजादी लेते वक्त धर्म के आधार पर किया गया. और जब भारत का विभाजन धर्म के आधार पर किया, तब भयानक दंगे हुए. स्वाभाविक था होंगे, मगर विजुलाइज नहीं कर पाए. अभी अभी 14 अगस्त को ही पूरे देश ने विभाजन विभीषिका दिन मनाने का काम किया है. भारत के करोड़ों लोग ये भूल नहीं सकते कितनी पारावार वेदना जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहते थे, उनको सहन करनी पड़ी. हम नहीं भूल सकते. परिवार के परिवार उजड़ गए,
करोड़ोंपति अरबोंपति हमारे गांधीधाम में रोड पर आकर सब्जी बेचने के लिए मजबूर हो गए। इससे ज्यादा अत्याचार पूरे दुनिया में कहीं नहीं। और उस वक्त विभाजन का फैसला तो किया, मगर जब ये परिणाम आने लगे, कांग्रेस के सभी नेताओं ने वादा किया था कि पड़ोसी देशों से जो शरणार्थी आते हैं, हिंदू आते हैं, बौद्ध आते हैं, सिख आते हैं, जैन आते हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। आपको भारत अपने यहां स्वागत करेगा। करना भी चाहिए था। बड़ा उचित निर्णय कांग्रेस के नेताओं ने लिया था, मगर जैसे जैसे चुनाव आया वो निर्णय से मुकरते गए। सन 47 में किया हुआ वादा, 48 में किया हुआ वादा, 50 में किया हुआ वादा, जवाहरलाल नेहरू ने किया हुआ वादा, महात्मा गांधी का आह्वान, वो सब भुला दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि इनको नागरिकता देंगे तो हमारी वोट बैंक नाराज हो जाएगी, और तुष्टीकरण के कारण ये लाखों करोड़ों लोगों को नागरिकता से वंचित रहना। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। वो वहां से भाग कर आए, प्रताड़ना झेल कर आए, अपना परिवार कई लोगों ने गंवाया, कई माताओं बहनों के साथ अत्याचार किए गए, करोड़ों की संपत्ति छोड़कर आए, और यहां आए, यहां उनको नागरिकता भी नहीं दी। 47 से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब तक 47 से 19 और 19 से 24 ये यात्रा इस देश का इतिहास हमेशा याद रखेगा। मैं आज इस मंच से जिन जिन लोगों ने सरकारें चलाई उनको पूछना चाहता हूं, क्या दोष था इन लोगों का जो अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए यहां है, अपनी संपत्ति को, अपने धर्म को, अपने सम्मान को बचाने के लिए आए? वो क्यों भारत के नागरिक नहीं बन सकते? एक और तो सीमा से आपने घुसपैठ कराई, करोड़ों घुसपैठियों को आने दिया, अवैध रूप से उनको नागरिक बना दिए, और जो कानून को मानते हैं, आपको एप्लीकेशन की, उनको कहते हैं कानून में इसकी जगह नहीं है। कानून लोगों के लिए होता है, कानून के लिए लोग नहीं होते हैं। हमने 2014 में वादा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला तो हम सीए लाएंगे, और 2019 में हम सीए लेकर आए। और करोड़ों हिंदू, करोड़ों जैन, बौद्ध, सिख जिनको न्याय नहीं मिला था, उनको न्याय देने की शुरुआत हुई। मैं आज इस मंच से स्पष्टता से कहना चाहता हूं, मैं काफी समय चुप रहा हूं। ये कानून पारित हुआ था 19 में। 19 में कानून पारित होने के बाद भी सबको भड़काया गया कि इससे मुसलमानों को अन्याय होगा, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं आज फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए, ये कानून में किसी की नागरिकता लेने की कोई प्रोविजन नहीं है। ये कानून नागरिकता देने का कानून है। अभी हमने दी, इनके चेहरे देखिए। हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश में निराश्रित बनकर रह गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और विडंबना क्या हो सकती है? इतने सालों तक ये तुष्टीकरण की नीति के कारण ये नहीं हो पाया था। नरेंद्र मोदी जी ने 19 में कानून लाने का फैसला दिया, और मुझे संसद में वो कानून को पारित करने के लिए रखने का सौभाग्य। 19 में कानून पारित होते हुए भी आज 188 परिवार यहां खुशहाल खड़े हैं। क्यों नहीं मिला भाई 19 से 24 आपको? देश में दंगे कराए गए, अल्पसंख्यकों को भड़काया गया। और मैं आज स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, ये अफवाहें फैलाई गई थी सीए की कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाती। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन जो शरणार्थी मेरे भाई बहन आए हैं, उनको नागरिकता और सम्मान देने का कार्यक्रम है, अधिकार। और आज भी कुछ राज्य सरकारें हैं जो लोगों को गुमराह कर रही। मैं आज मंच से देश भर के शरणार्थी भाइयों को कहता हूं
कि आप बेझिझक एप्लीकेशन करिए, नागरिकता प्राप्त करिए, आराम से करिए। इससे पास्ट में अगर आपकी नौकरी है तो वो चालू रहेगी, आपका मकान है वो आपके नाम पर ही रहेगा, आपके सारे काम जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सुधारने की। इसमें कोई क्रिमिनल केस का प्रोविजन नहीं, सबको पार्डन दिया गया है। और पार्डन इसलिए लिया है कि सरकार के कारण ये देरी हुई, आपके कारण नहीं हुई। मैंने अभी बहन को पूछा कब आई आप, तो 95 में आई। 95 से अब तक किसने देरी की? वो तो तुरंत चाहती थी मैं भारत की नागरिक बनूं, मगर किसने नहीं बनने दिया? सरकार ने कहा। इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा। और आज मुझे बड़ा दिल में बहुत संतोष है कि मेरे ही राज्य में आज 188 परिवार मां भारती के परिवार बनकर, हमारे भाई बहन बनकर हमारे साथ सम्मान के साथ। और मैं आज अपील करना चाहता हूं देश भर के शरणार्थी भाइयों बहनों को, कोई भी गुमराह करे, कोई भी पार्टी करे, मैं पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता, मगर आप मत मानिएगा। ये कानून आपको न्याय देने के लिए है। आपके साथ जो अत्याचार हुए हैं इसकी क्षमा के साथ परिमार्जन के लिए आपको सम्मान देने का कानून। जो विभाजन की विभीषिका को झेले हैं और बाद में भी जो वहां रहे, आज हमें पूछते थे संसद में, मुझे विपक्ष के मित्र, क्यों ये कानून, क्यों ऐसा? मैं आज उनको कहना चाहता हूं, जब विभाजन हुआ तब बांग्लादेश में 27% हिंदू था, 27%। आज 9% है। कहां गया? जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। 27% हिंदू था। या तो वो यहां आए, शरण में आए, या धर्म परिवर्तन कर। क्या उनको अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्मों में जीने का अधिकार नहीं है क्या? अगर पड़ोस के देश में अपने सम्मान के साथ जी नहीं सकते, हमारी शरण लेकर आते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम मुख दर्शक बनकर बैठ नहीं सकते। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, आपको न्याय मिलेगा और जरूर। और सालों से इस शरणार्थियों की मांग थी। 19 में मोदी जी ने अपनी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण एक फैसला लिया, कानून पारित हुआ, आंदोलन हुए, कुछ जगह पे हिंसक घटनाएं भी हुई। जो हुआ हुआ, अंततोगत्वा 24 के चुनाव के पहले हमने रूल्स बनाकर अधिकार दे दिया और आज सर्टिफिकेट भी दे दिया आप लोगों को। आप सभी का हृदय से भारत माता की संतान है नाते इस देश में मैं स्वागत करता हूं और बड़े सम्मान के साथ आप जियोगे, इसका मैं विश्वास भी करता हूं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया, तब मोदी जी ने इस देश की जनता को कहा था कि इस देश का लोकतंत्र परिवारवाद से पीड़ित है, जातिवाद से पीड़ित है, तुष्टीकरण से पीड़ित है और भ्रष्टाचार से पीड़ित है। ये चारों नासूरों को नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में उखाड़ने के लिए अथक प्रयास किया। परिवारवाद के खिलाफ 15 अगस्त को उन्होंने घोषणा की, अपील की है। कैसे 1 लाख युवा राजनीति में जुड़े जिनके परिवार में से कोई राजनीति में नहीं, कोई राजनीति, ये अपील की है। और परिवारवादी पार्टियों को घोर पराजय भी देश की जनता ने घोर पराजय दिखाया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जंग किया, जातिवाद के खिलाफ भी किया। उन्होंने जातिवाद के नासूर को समाप्त करने के लिए 4 जातियां घोषित की, एक गरीब, एक महिला, एक युवा और एक किसान। ये 4 जातियों में ही पूरा देश बटा हुआ है और ये 4 जातियों को ही एक नए प्रकार की राजनीतिक फिलसफी उन्होंने देश के सामने रखी और उन्होंने
तुष्टीकरण की राजनीति को भी तिलांजलि दे दी। इस देश के कई मसले ऐसे अटके पड़े थे। राम मंदिर का मसला अटका था 550 साल से। आज भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाने का काम पूरा है। औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर फिर से बन गया। मोहम्मद बेगड़ा ने तोड़ा हुआ हमारा पावागढ़ के शक्तिपीठ का भी पुनरुद्धार। इस देश में ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। आतंक की फैक्ट्री जिस सोच के कारण जन्मी थी, जिस सोच के कारण चलती थी, वो सोच को पोषण करने वाला धारा 370 नरेंद्र मोदी जी ने नाबूद कर दिया। और करोड़ों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन भाइयों को जो अन्याय करने वाला, उनका अधिकार से वंचित रखने वाला कानून का संशोधन अटका था, उस सीएए का संशोधन भी नरेंद्र मोदी जी ने लाकर देश के अंदर एक न्याय का वापस। मैं अंत में फिर से एक बार देश भर के शरणार्थी भाइयों बहनों को अपील करना चाहता हूं। ये इंडिया अलायंस है, कांग्रेस और उनके साथी गुमराह करेंगे, मत डरना। मैं देश के गृह मंत्री के नाते कहता हूं, आप एप्लीकेशन कर दो, आपको न्याय मिलेगा, कोई कोर्ट केस नहीं। और ये तो उदाहरण है, 188 परिवार, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, नागरिक भी बन गए, उनके बच्चे एमएलए भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, आईएएस भी। जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि आप इनके साथ अन्याय कर रहे हो। आप में तो हिम्मत नहीं थी वोट बैंक के कारण कानून लाने की, मोदी जी लाए हैं, कम से कम इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमारा समर्थन करें। मित्रों, आज मुझे अत्यंत खुशी है, बहुत बड़ा दिन है आज मेरे लिए कि मेरे ही गुजरात में 188 परिवार जो आज तक शरणार्थी थे, अब भारत माता की संतान बनकर हम सबके साथ जिएंगे, गौरव के साथ जिएंगे। मैं ये परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। गुजरात सरकार और जनगणना का कार्यालय दोनों ने इसके लिए बहुत तेजी से काम किया है, अच्छे फैसले करे हैं और इनको न्याय दिला है। उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ जोर आवाज से जो लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं, इनके बहरे कानों तक पहुंचे ऐसी आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके इस अर्थपूर्ण अभिभाषण के लिए। जे कહેવું એ કરી બતાવવું એ વર્તમાન સરકારનો કાર્યમંત્ર છે। સીએ અંતર્ગત પડોશી દેશમાં વસતા હિન્દુઓને ઘણા સમયથી ભારતમાં આવ્યા છે તે લોકોને નાગરિકત્વ આપવામાં આવશે। 188 જેટલા લોકોને જે છે આજે ભારતીય નાગરિકત્વ આપવામાં આવશે। દેશના ગૃહમંત્રી અમિત શાહના હસ્તે આપવામાં આવશે। ત્યારે પંડિત દીનદયાળની અંદર જે ઘણા વર્ષોથી ભારત સિવાય અન્ય દેશની અંદર જે વસતા હતા અને તે લોકો ભારતમાં રહેતા હોય તેવા લોકોને આજે દેશના ગૃહમંત્રીના હસ્તે જે નાગરિકત્વ આપવામાં આવશે। તેમાંના એક ભાઈ છે, તેમની સાથે વાત કરશું। આપનું નામ શું અને આપ કેટલા સમયથી ભારતમાં રહો છો અને પહેલા ક્યાં રહેતા હતા? 2000 મારું નામ જીવણભાઈ રાજાભાઈ રબારી, જિલ્લો બદીન, સિંધ પાકિસ્તાન। 2014 में मैं भारत में आया था। તે પછી મોરબી જિલ્લામાં મારે રહેવાનું થયું। પછી ત્યારે નેશનાલિટીનો સીઓ કાયદો કાનૂન આવ્યો, એમાં અમિત શાહ ભાઈના ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે। મારા માટે સારું થયું છે ત્યારે। અચ્છા, તમે ભારતમાં આવ્યા પહેલા પાકિસ્તાનની અંદર તમારી સાથે એક હિન્દુ બધું જોવા મળે કે હિન્દુ સાથે ખૂબ જ ખરાબ વ્યવહાર થઈ રહ્યો છે। આપને ત્યાં કેવા પ્રકારનો વ્યવહાર થતો? હિન્દુઓ સાથે કેવું વર્તન ત્યાં કરવામાં આવતું હતું? એ સારું તો એમાં તમે બધું જુઓ તો અમારે કઈ પૂછવાનું મતલબ નથી, કઈ બોલવાનું કઈ મતલબ નથી, એ ત્યારે સારું જ છે। ત્યાં કેવો પ્રકારનો વ્યવહાર આપની સાથે કરવામાં આવતો? કારણ કે જે પ્રકારે આપણે જોતા હોય છે, દ્રશ્ય પણ જોતા હોય છે કે હિન્દુ સાથે ખૂબ જ ખરાબ વ્યવહાર કરવામાં આવતો હોય છે। આપે પણ ત્યાં પોતાનું, તમે ત્યાં રહ્યા છો, ત્યાં કેવો પ્રકારનો વ્યવહાર કરવામાં આવતો હતો અને ત્યાં તમે વ્યવસાય શું કરતા હતા?
વ્યવસ્થા અહીંયા અમારે ખેતીવાડી હતી, પછી અડધું અમારું સગવાલું અહીંયા અડધું આ, પછી લેતી લેતીની તકલીફ પડતી હતી. પછી અમે વિચાર્યું આપણે રહેવાનું આમ તો અહીંયા છે, પછી અહીંયા કાગડિયા બનાવીને વિચારે અપ્લાય કરી 2014માં, પછી ભારતમાં આવી ગયા. પછી મોરબી જિલ્લામાં અત્યારે અમારે લોટરી સરકાર તરફ મળ્યા છે, વીજળી આવી ગઈ, પાણીનું કનેક્શન બોર થઈ ગયો કલેક્ટર સાહેબ તરફા, સુવિધા ફૂલ અમારે અહીંયા છે. આપ ભારતમાં આવ્યા, આટલો વર્ષો કાઢ્યા, હવે કાયદેસર તમે ભારતીય કહેવા જઈ રહ્યા છો. આજે તમને પ્રમાણપત્ર દેશના ગૃહમંત્રી અમિત શાહના હસ્તે મળી રહ્યા છો. કેટલા ખુશ છો કે હવે તમે ગર્વથી કહી શકશો કે અમે ભારતીય છીએ? હવે અમારી ખુશી એટલી દિવાળી જેટલી ખુશી છે. હવે અમારો અમિતભાઈ શાહના ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે. દિવાળી જેવો ખુશી છે. પછી આમાં જો લાભ સરકારી યોજના હોય તે અમારે મળવાની છે, ખુશી છે. હવે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે. બિલકુલ સરકારી લાભ મળશે. કેટલાક બીજા પણ બેન છે તેમની સાથે પણ વાત કરશું. બેન, તમે કેટલા વર્ષથી ભારતમાં રહો છો? એ પહેલા તમે ક્યાં રહેતા હતા? આપનું નામ શું? મારું નામ મીરાબેન. ક્યાં રહેતા હતા પહેલા? પેલા રાધરપુરમાં રહી, બહારી રોડ પણ રાધરપુરમાં રહી. તમે ભારતીય આજે નાગરિકત્વ મળી રહ્યું છે. આ પહેલા તમે ક્યાં રહેતા હતા? એટલે પાકિસ્તાનમાં રહેતા હતા કે અન્ય? પાકિસ્તાનમાં રહેતા ટંડોલિયા. ત્યાં કેવા પ્રકારનો વ્યવહાર કરવામાં આવતો? કારણ કે આપણે જોતા હોઈએ છીએ અને ટીવીની અંદર કે સોશિયલ મીડિયામાં જોતા કે હિન્દુઓ સાથે ખૂબ જ ખરાબ વ્યવહાર કરવામાં આવતો. ખરેખર તરા હતો હિન્દુઓનો. ત્યાં પણ સરકાર દ્વારા તમને સપોર્ટ કરવામાં આવતો હતો ખરો? અચ્છા, ભારતમાં આવ્યા હતા, કોના સંપર્કથી તમે ભારતમાં આવ્યા છો અને હવે તમને પટેયા કોના? મણીલાલ. આજે ભારતીય નાગરિકત્વ આપને મળી રહ્યું છે, કેટલા ખુશ છો? કારણ કે હવે તમે ગર્વથી કહી શકશો કે અમે ભારતીય છીએ. ધન્યવાદ તમને, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો બિલકુલ જે 188 જેટલા લોકો છો જે આજે કાયદેસર ભારતીય નાગરિકત્વ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે, ખુશ છે. કારણ કે હવે ગર્વથી કહી શકશે કે અમે ભારતીય 188 જેટલા લોકોને આજે ભારતીય નાગરિકત્વ દેશના ગૃહમંત્રી અમિત શાહના હસ્તે મળવા જઈ રહ્યું છે. કેમેરામેન વિકી સાથે રાહુલ ત્રિવેદી, ગુજરાત ફર્સ્ટ, અમદાવાદ.